Exercise 5.6, find dy by dx. This x equal to 2at square and y equal to 80 raised to 4. This equation is called parametric equation. इसको हम parametric equation बोलते हैं. X equal to 280 square and y equal to 80 raised to 4 is called parametric equation. T is a parameter. ગુજરાતીમાં આને પ્રચલ સમીકરણ કહેવાય અને t જે છે એ પ્રચલ છે. इसमें से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले सेपरेटली इसका डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, इसका डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे. देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. तो सबसे पहले हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे. टू ए द कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा. सो डी एक्स बाई डी टी विल बी 4at. And y equal to 80 raised to 4 differentiating with respect to t, dy by dt equal to a the constant derivative t raised to 4. T raised to 4 का derivative 4t cube. So total it will be 4at cube. Now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. Put the value of dy by dt from here 4at cube and put the value of dx by dt 4at. 4 cancel, a cancel. T cube divided by t. t क्यूब डिवाइडेड बाई t विल बी बेस इक्वल पावर का सब्ट्रैक्शन होगा t रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज t रेस टू 2. सेम सेकंड क्वेश्चन x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा. दिस इज ऑल्सो पैरामेट्रिक इक्वेशन. આ પણ પ્રચલ સમીકરણો કહેવાય છે. એનું વિકલન માટે dx બાય d थीटा અને dy બાય d थीटा શોધવું પડે. ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसीलिए उसका डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, यहाँ डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सो इट विल बी माइनस ए साइन थीटा. एंड वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी द कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. सो दिस इज द माइनस बी साइन थीटा. Now dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. डिनोमिनेटर जब आता है तब हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. छेद જ્યારે આવે ત્યારે આપણે લખીએ છીએ કે છેદ 0 થતો નથી. डिनोमिनेटर जब आता है तब हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. सो put the value dy by d theta and dx by d theta. Sin theta will be cancel. Answer is this negative also cancel. Answer is b upon a. Now question number 3. x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t. હવે જ્યારે ઇક્વેશન આપ્યા હોય x અને yના ફોર્મમાં તો એને પ્રચલ સમીકરણ કહેવાય અને આની અંદર t જે છે એ પ્રચલ છે. આ દાખલાની અંદર થીટા પ્રચલ હતો, આમાં t प्रचल છે. ऐसे जो इक्वेशन देते हैं x एंड y के फॉर्म में उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन में एक पैरामीटर होता है, यहाँ पर t द पैरामीटर. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन t का डेरिवेटिव cos t होता है. एंड हियर dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ cos 2t में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t एंड 2t का डेरिवेटिव 2. सो इट इज माइनस 2 साइन 2t. नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी and divided by dx by dt where dx by dt not equal to 0. Put the value of dy by dt. dy by dt is minus 2 sin 2t and dx by dt the cos t. This is the formula from trigonometry. Sin 2t the 2 sin t cos t and cos t will be cancelled. Answer is minus 4 sin t. Same question number 4, again parametric equation in the form of t. T is parameter. Now differentiating with respect to t dx by dt equal to 4 is the constant derivative t is 1. So 4 into 1 it is 4. And again differentiating with respect to t dy by dt 4 is the constant derivative 1 upon t and 1 upon t ka derivative minus 1 upon t square. So it is minus 4 upon t square. Now dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt where dx by dt not equal to 0. Put the value of dy by dt and dx by dt. This 4 will be cancelled and answer will be minus 1 upon t square. Exercise 5.6 question number 5. x equal to cos theta minus cos 2 theta, y equal to sin theta minus sin 2 theta. Again it's a parametric equation. આ પણ એક પ્રચલ સમીકરણ છે where theta is parameter, જ્યાં theta એ પ્રચલ છે. So x equal to cos theta minus cos 2 theta differentiating with respect to theta.
एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 theta का डेरिवेटिव माइनस sin 2 theta and derivative 2 theta is 2. So this is the minus sin theta plus 2 sin 2 theta. Now y equal to sin theta minus sin 2 theta. Again differentiating with respect to theta. dy by d theta equal to d by d theta of sin theta minus d by d theta of sin 2 theta. Sin theta का डेरिवेटिव cos theta, sin 2 theta का डेरिवेटिव cos 2 theta and 2 theta का बाकी बचा 2 theta का डेरिवेटिव 2. So it will be cos theta minus 2 cos 2 theta. This is your dy by d theta. You know the formula dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta, where denominator is not equal to 0. छेद 0 न था. Put the value of dy by d theta and dx by d theta. पॉजिटिव स्टेप आगे लिखेंगे, नेगेटिव वाला पीछे लिखेंगे. 2 sin 2 theta minus sin theta. So dy by dx. Now question number 6. X equal to a into bracket theta minus sin theta and y equal to a into bracket 1 plus cos theta. Again it's a parametric equation differentiating with respect to theta. Dx by d theta equal to a the constant derivative theta with respect to theta minus derivative theta minus derivative sin theta with respect to theta. थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा. And trigonometry formula 1 minus cos theta is the 2 sin square theta by 2. So dx by d theta equal to 2a sin square theta by 2. अब y इक्वल टू है हमारे पास a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा. इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. dy by d theta इक्वल टू a द कांस्टेंट, डेरिवेटिव 1 is 0 and derivative cos theta is minus sin theta. So it is minus a sin theta. Simplify for trigonometry formula. Sin theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So dy by d theta equal to minus 2a sin theta by 2 cos theta by 2. And now dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta, where dx by d theta not equal to 0. Put the value of dy by d theta from here and put the value of dx by d theta from here. 2a to a cancel, एक sin theta cancel हो जाएगा, cos theta by sin theta will be minus cot theta by 2. अब जितनी जगह बची उसके हिसाब से हम 9 नंबर का क्वेश्चन लेंगे. 7 8 नंबर थोड़ा बड़ा है, इसके बाद लेंगे. x इक्वल टू a sec theta and y इक्वल टू b tan theta. x equal to a sec theta differentiating with respect to theta dx by d theta equal to a the constant, derivative sec theta is sec theta tan theta, and y equal to b tan theta differentiating with respect to theta b constant tan theta का derivative sec square theta. Now dy by dx equal to dy by d theta upon dx by d theta, where dx by d theta not equal to 0. Put the value of dy by d theta from here, b sec square theta, and dx by theta is a sec theta tan theta. बी एन ए कैंसिल नहीं होगा, सेक स्क्वायर में से एक सेक कैंसिल हो जाएगा. सेक अपॉन टेन, सेक माने 1 अपॉन कॉस एंड टेन माने साइन अपॉन कॉस, तो बचा 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन साइन को हम कॉसेक बोलेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए कॉसेक थीटा. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए कॉसेक थीटा. थोड़ा सा बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कॉस 2t and y इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कॉस 2t. सबसे पहले x लेंगे, साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट कॉस 2t. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, भागाकार नियम. डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर. छेदमा छेदनो वर्ग, छेद एम अंशनु विकलन माइनस अंश एम छेदनु विकलन. Denominator the whole square, denominator as it is derivative numerator minus numerator as it is derivative denominator. Square root cos 2t as it is, sin cube t का डेरिवेटिव उसमें पहले पावर का होगा 3 sin square t, फिर बेस का होगा sin t का. sin cube t as it is square root cos 2t का स्क्वायर रूट का 1 अपॉन 2 रूट एंड बाकी बचा cos 2t का डेरिवेटिव. यहाँ पे स्क्वायर रूट cos 2t as it is 3 sin square t, sin t का डेरिवेटिव cos t. sin cube t as it is ये 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t, अभी cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का बाकी बचा, 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा. अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड स्क्वायर रूट cos 2t विल बी cos 2t, बाकी वाले सब एज इट इज, और ये वाला नीचे जाएगा स्टेप cos 2t के साथ स्क्वायर रूट cos 2t. स्क्वायर रूट cos 2t मतलब cos 2t के ऊपर पावर हाफ होता है
और इसके ऊपर पावर 1 होता है, पावर हाफ एंड पावर 1 विल बी 3/2 पावर, इसके ऊपर पावर घात 1/2 અને આની ઘાત 1/2 અને 1 એટલે 3/2, इसके ऊपर पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर 1, सो दोनों मिला के 3/2 पावर हो जाएगा। ये अपना dx/dt हुआ। अब y इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई स्क्वायर रूट कॉस 2t, सेम मेथड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट कॉस 2t एज इट इज, कॉस क्यूब t का डेरिवेटिव 3 कॉस स्क्वायर t, कॉस t का माइनस साइन t, कॉस क्यूब t एज इट इज, स्क्वायर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2t, कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2। ये दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो रूट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t, और ये स्क्वायर रूट वाला स्टेप नीचे आएगा। सेम यहाँ जो किया यही मेथड, ये स्क्वायर रूट मतलब हाफ पावर, ये पावर 1, दोनों का एडिशन 3/2 पावर। अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, वेयर डी एक्स बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू रख दी, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब हम आगे का जाएंगे, स्टॉप कर, तो वहाँ से cos रेस टू 3/2t ऊपर नीचे से दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इतना बाकी बचा। अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के सारे टर्म को cos क्यूब टी से डिवाइड करते हैं। अंश અને છેદના દરેક ઘટકને cos क्यूब टी થી ભાગી નાખ્યા, सो cos क्यूब टी से डिवाइड कर दिया सारे टर्म को, तो एक cos स्क्वायर एंड cos क्यूब, तो एक cos नीचे बचेगा, ऊपर एक साइन तो बचा हुआ है, सो इट इज tan t। यहाँ पे देख सकते हैं आप tan t हो गया, ये tan t हो गया। tan t कैसे हुआ, एक बार फिर से cos स्क्वायर एंड cos क्यूब, तो ये पूरा चला जाएगा और इसमें से सिर्फ पावर जाएगा, तो sin t अपॉन cos t विल बी tan t एंड बाकी वाले सब एज इट इज। cos क्यूब t पूरा चला जाएगा, ये cos t में से ये cos क्यूब t है तो एक cos चला जाएगा, cos स्क्वायर बाकी बचेगा, वो sin स्क्वायर के साथ मैच होकर tan स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला tan स्क्वायर, और यहाँ पे tan क्यूब t एंड sin 2t। अब आपको कुछ नहीं करना है, cos 2t का tan में कन्वर्ट करता हुआ फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 1 प्लस tan स्क्वायर टी। sin 2t का tan में कन्वर्ट करता हुआ फॉर्मूला है 2 tan t बाई 1 प्लस tan स्क्वायर टी। सेम cos 2t का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 1 प्लस tan स्क्वायर टी, एंड sin 2t का फॉर्मूला है 2 tan t बाई 1 प्लस tan स्क्वायर टी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी जो नीचे है वो कॉमन है, सो कॉमन एंड कैंसल, तो ऊपर से ये बचेगा, ऊपर से नीचे से ये बचेगा, माइनस 3 tan t इंटू ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर टी प्लस 2 tan t बचेगा, और यहाँ पे 3 tan स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर टी प्लस 2 tan रेज़ टू 4t, इतना बचेगा। ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से इतना बचता है, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा माइनस 3 tan t एंड 2 tan t विल बी माइनस tan t, एंड ये हुआ अपना माइनस tan t, एंड ये वाले का सिंप्लीफिकेशन होगा, इट विल बी माइनस 10 रेज़ टू 4। अभी tan t कॉमन एंड कैंसल ऊपर नीचे से, ओके। इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला इजीली बन जाए। इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी माइनस कॉमन निकाला, सो माइनस 1 अपॉन ये न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, अंश इज इक्वल टू छेदनो छेद, अंश इज इक्वल टू छेदनो छेद, दिस न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज द डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, अंश इज इक्वल टू छेदनो छेद, सो माइनस 1 अपॉन ये नीचे लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan 3t का, tan 3t का फॉर्मूला हुआ माइनस 1 अपॉन tan 3t, सो इट विल बी माइनस cot 3t।